Hello students, my name is Dr. Sumendra Kumar. My channel Expert Chemistry Expert SS. आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज किए जाते हैं. Electronic effect, the displacement of covalent bonds may occur either due to the presence of the some atom or group in the molecule under the influence of attacking reagent. This is called the electronic effect. Electronic effect दो प्रकार के होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं. एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं. नंबर एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और नंबर टू टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. अब जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दीज आर थ्री टाइप्स. The permanent electronic effects are three types. First, inductive effect. And second, mesomeric effect. Mesomeric effect. इसको रिजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं. एंड थर्ड, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. और जो हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट होता है ये दिस इज ओनली वन टाइप, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो the electronic effects, two types. First, permanent electronic effect, and second, temporary electronic effect. The permanent electronic effect are three types. First, inductive effect, and second, mesomeric effect or resonance effect, and third, hyperconjugation effect. But the temporary effect only one type. This is electromeric effect. So today discuss of the inductive effect in this video. Please write down. Inductive effect. First, most important point of inductive effect, definition of inductive effect. Secondly, character of inductive effect. And third, type of inductive effect.
type of inductive effect. And fourth, application of inductive effect. Application of inductive effect. Application of inductive effect. Please note the most important points and headings of the inductive effect. First, definition of inductive effect, and second, character of inductive effect, and third, types of inductive effect, and fourth, application of inductive effect. So first, definition of inductive effect. डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो टू टाइप होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टू टाइप होते हैं। फर्स्ट, नॉन पोलर बॉन्ड एंड सेकंड polar bond. You know that what is the non-polar bonds and polar bonds. See, or this type called the non-polar bond, and CCl or XCNO2, CCN and CCOOH and COH. This is called the polar bonds. But in this condition, non-polar bonds but no attached to the different electronegativity atom to the carbon, so called the non-polar bond. But in the attached to the carbon atom, the different electronegativity atom to the carbon atom called the polar bonds. This is all polar bonds. The inductive effect work in the polar bonds, and definition of the polar bonds बताया मैंने आपको कि पोलर बॉन्ड के जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें टू टाइप बॉन्ड पाए जाते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं और एक पोलर बॉन्ड होते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ द polarization of one bond by the influence of an adjacent polar bond or group. Polar bond of group. Polar bond of group is known as the inductive effect. Inductive effect. Polarization of one bond by the influence of an adjacent polar bond of group is known as the inductive effect. So the explanation of inductive effect, for example,
CH3, CH2, 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 Cl and other electronegativity atom. This is polar bond. This is polar bond. Non-polar bond, non-polar, non-polar bond. This is the sigma bond. Sigma bond. So heteroatom is sharing of electrons because the high electronegativity of chlorine. High electronegativity of chlorine atom, but the low electronegativity of carbon atom. जो हमारे पास ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है इन द कोवलेंट बॉन्ड, इस कोवलेंट बॉन्ड में इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये थोड़ा सा इसकी ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे इसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज और इसके पास पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इसमें टू पोलर हो गए हैं, पॉजिटिव पोलर और नेगेटिव पोलर, टू पोलर हो गए। तो दिस इज कॉल्ड द पोलर बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा सा इसकी ओर विस्थापित होते हैं, इस कार्बन और क्लोरीन के जो साझे इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की जो विस्थापित होते हैं, इस विस्थापन को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इस विस्थापन को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जो क्लोरीन की ओर डिस्प्लेस हुए हैं, इस डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन्स को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और ये जो होता है, जो दो एटम हमारे पास होते हैं अटैच या बॉन्डेड बाय द पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये बॉन्ड का जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा इसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे बॉन्ड वीक हो जाता है और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ भी बताऊंगा आप लोगों को इसमें एप्लीकेशन में। तो ये बॉन्ड थोड़ा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं, इसे ही इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट, कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं, इसे हम बीटा कार्बन एटम कहते हैं, इसे हम गामा कार्बन एटम कहते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव होता है वो केवल गामा कार्बन एटम तक होता है, यहां पर बिल्कुल डेड हो जाता है। इस कार्बन एटम पर इस इंडक्टिव इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों को ये पुश, इलेक्ट्रॉन जो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका प्रभाव केवल गामा कार्बन एटम तक होता है और यहां आकर इसका प्रभाव निरस्त हो जाता है। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑफ द चेन, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है। सो द हाई इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम पर सबसे अधिक इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव देखा जा सकता है। और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरेक्टर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट कैरेक्टर, द इंडक्टिव इफेक्ट, the inductive effect is greater first carbon atom,
कार्बन एटम और अल्फा कार्बन एटम। सेकंड, दिस इज, यानी कि मैंने बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अल्फा कार्बन परमाणु पर अधिक होता है। दिस इज परमानेंट इफेक्ट, दिस इज परमानेंट इफेक्ट, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। थर्ड, this effect operate by sigma bond. And number 4, the polarization of electron always one direction. So the four character of the inductive effect: first, the inductive effect is greater first carbon atom or alpha carbon atom. Second, this is permanent effect. And third, this effect operated by the sigma bond. And fourth, the polarization of electron always one direction. केवल जैसे मैं बताया आप लोगों को Cl था तो केवल एक ही डायरेक्शन में, केवल इसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप होता है। फर्स्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मैं बताता हूं कि कहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। देखिए, हमारे पास टू टाइप ग्रुप होते हैं। हमारे पास टू टाइप ग्रुप होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड सेकंड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इस बेस पर हम बता सकते हैं कि कहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है और कहां पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए, यानी कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, ऐसे ग्रुप या ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, तो वे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। वे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जैसे O- और C+O- और एल्किल ग्रुप। इस तरीके से इनका ऑर्डर होता है। अगर मैं एल्किल ग्रुप की बात करूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, ये इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है ये वीक होता है, और ये और वीक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। अब इनकी हम बात कर लेते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री। CH3 और CH3 और CH3 सेकेंडरी
and primary CH3, CH2 and CH3। देखिए एल्किल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो ऑर्डर है वो ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम ऑफ द एल्किल ग्रुप्स। तो जहां पर भी ये ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है, वहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। अब बात करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहां उत्पन्न होगा, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वहां उत्पन्न होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को लेने वाले, जहां पर इलेक्ट्रॉनों को लेने वाले समूह उपस्थित होते हैं वहां नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं मैं उनका ऑर्डर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे अधिक NF3 और प्लस सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव उत्पन्न करता है। फिर NH3 प्लस ये इससे कम इंडक्टिव उत्पन्न करता है। फिर CF3 ये, और फिर इसके बाद NO2 ये, और इससे कम SO3H, और फिर इससे कम COCl ग्रुप, और इसके बाद एस्टर ग्रुप CO एस्टर ग्रुप, और फिर FCl Br और I, और OH ग्रुप, और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फेनिल ग्रुप और लास्ट H। The order of the inductive effect, the decreasing order of the inductive effect in any organic compounds। देखिए सबसे अधिक हमारे पास ये सबसे अधिक, अगर कहीं भी हमें एसिडिटी कैरेक्टर देखना होगा और एसिडिक कैरेक्टर देखते समय तो हमें ये देखना होगा सबसे ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये उत्पन्न करता है। उसके बाद NH3 प्लस, और फिर CF3, NO2, SO3, COCl, और फिर बाद में ये हमारे पास। तो यहां देख सकते हैं तीनों में कौन सा सबसे ज्यादा इंडक्टिव उत्पन्न करता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन I- प्रभाव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करता है। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास 2 टाइप इंडक्टिव हो गए हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ, फोर्थ पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। नंबर 3 एसिड स्ट्रेंथ। फोर्थ बेसिक नेचर। बॉन्ड लेंथ। और डाइपोल मोमेंट। बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखिए
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनिक केटायन, यदि हमारे पास प्लस आई इफेक्ट है, देन द proportional to stability of कार्बनिक केटायन, stability of कार्बनिक केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनिक केटायन, यदि प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न होता है तो कार्बनिक केटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। देखिए कैसे, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस कार्बनिक केटायन इंटरमीडिएट एंड CH3 CH3 एंड CH प्लस एंड CH3 C प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब एक मैं और एल्केन की बात कर लेता हूं। CH2 CH3 और पॉजिटिव CH3 और CH2 पॉजिटिव। अगर हम बात करें कि हमारे पास देखिए ये अधिक स्टेबल है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहां पर ये कौन सा प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इससे अधिक इसकी स्टेबिलिटी है। अब यहां पर देखिए प्लस I2 है, प्लस I, दो ग्रुप हमारे पास प्लस आई नेगेटिव उत्पन्न करने वाले, तो स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए आप लोग स्टेबिलिटी, द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनिक केटायन, सो द हाई स्टेबल ऑफ 3 डिग्री कार्बनिक केटायन। बट इन दिस सेकंड केस देखिए हमारे पास ये 3 डिग्री कार्बनिक केटायन है, ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बनिक केटायन है और ये 2 डिग्री कार्बनिक केटायन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बनिक केटायन है और ये 1 डिग्री कार्बनिक केटायन है, इसलिए ये स्टेबल अधिक होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनिक केटायन इंटरमीडिएट। इसके बाद बात कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ, देखिए negative impact proportional to 1 upon the stability of कार्बनिक केटायन, stability of कार्बनिक केटायन। देखिए हमारे पास CH3 CH और CH3 पॉजिटिव। ये छोटा एग्जांपल जल्दी समझ आएगा आपकी। CH2 एंड CH2 Cl CH2 प्लस CH Cl Cl CH2 प्लस और Cl 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 और CH2 प्लस। देखिए यहां पर हमारे पास ये माइनस आई प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, यहां पर दो आई प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, यहां पर 3 ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, माइनस आई प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, तो ये कम स्टेबल है। अगर हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव उत्पन्न कहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे ग्रुप हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करने वाले बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। द स्टेबिलिटी द कार्बनिक केटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और यदि हम बात कर लेते हैं, देखिए हमारे पास एक मैं एग्जांपल और बताऊं आप लोगों को, NO2CH2
2 प्लस और NC ट्रिपल बॉन्ड और CH2 एंड FCH2 पॉजिटिव। देखिए मैंने आपको जो ऑर्डर दिया था तो ऑर्डर में सबसे पहले है और ये बाद में आता, तो सबसे यानी कि यहां पर जो हम जो बात करेंगे स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस साइड को डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस I inversely proportional to stability of carbon ion, stability of carbon ion, कार्बन आयन। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हमारे पास CH3 माइनस और CH3CH2 माइनस CH3CH3CH माइनस और CH3CH3CH3 और माइनस। देखिए हम बात कर लेते हैं हमारे पास, यदि देखिए इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, जैसे जैसे हमारे पास नेगेटिव यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमारे पास ये जो ग्रुप है, हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जैसे जैसे हमारे पास जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यदि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहां बढ़ता जाता है तो स्टेबिलिटी घटती जाती, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यदि बढ़ता जाता है तो स्टेबिलिटी घटती जाती, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। जैसे देखिए हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करने वाले हैं, तब द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट माइनस I proportional to the stability of कार्बन आयन, कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास CH3 CH2 माइनस और CH2Cl CH2 माइनस और CHCl Cl और CH2 माइनस और Cl 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 एंड CH2 माइनस। देखिए द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली proportional to the negative inductive effect। यहां नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, लेकिन एक ग्रुप है तो ये स्टेबल है, यहां पर दो है ये इससे अधिक स्टेबल है और यहां पर तीन है इससे अधिक स्टेबल है। तो इस तरीके से हम द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट देख सकते हैं। और एक मैं और बताऊं आप लोगों को, एक ऑर्डर और है इसका, देखिए CH2 Cl CH2 कार्बन आयन है, Cl और CH2 माइनस और यहां Cl। देखिए जो हम बात करें ये हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव उत्पन्न कर रहा है, और एक मैं बात कर लेता हूं, देखिए ये CH2 माइनस। जैसे जैसे नेगेटिव इंडक्टिव कहां, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव पे ये जो कार्बन है, मैंने बोला नहीं ये अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम है, ये गामा कार्बन एटम है, तो यहां जो हमारे पास इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास किसकी स्टेबिलिटी, जो हमारे पास
अधिक, यानी कि इसके पास तो ये स्टेबल अधिक होगा, इसके बाद ये स्टेबल होगा, इसके बाद ये स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। देखिए हमारे पास एसिड यू नो H A माइनस प्लस H प्लस A माइनस H प्लस। देखिए अगर मैं आपको बताऊं एसिड स्ट्रेंथ में यदि प्लस आई इफेक्ट है, यदि प्लस आई इफेक्ट है तो एसिड स्ट्रेंथ घटती है। एसिड नेचर, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पास ये HCOOH है और यहां एक CH3COOH है और यहां पर C2H5COOH है और CH3COOH। देखिए यहां पर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस तरह से इसका ऑर्डर हो गया है क्योंकि हमारे पास ये प्लस जो आई इफेक्ट है, जो प्लस आई प्रभाव उत्पन्न इधर को बढ़ रहा है। देखिए बड़ा ग्रुप है और ये और बड़ा ग्रुप है, तो ऐसे जो हमारे पास है द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पर दो हमारे पास टू ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, जब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती। क्यों ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं आपको। देखिए C डबल बॉन्ड ओवर सिंगल बॉन्ड H, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये इस साइड को इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। जब इस साइड को इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि यहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इजीली जो है ये H+ आयन दे देगा, बहुत आसानी से H+ आयन दे देगा। लेकिन यदि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है जैसे CH3 या अदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है जैसे NH2 और Cl वगैरह, तो ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इस ऑक्सीजन को बोलता है कि भाई अभी उससे इलेक्ट्रॉन तू देरी से लेना, पहले इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले। इसलिए ये H+ देरी से पृथक होगा। तो इसी प्रकार से जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर है, तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होने के कारण ये बेस जो एसिड है वो फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और इसी प्रकार से ये प्रोपेनिक एसिड है, ये इससे और वीक एसिड है, और ये आइसोप्रोपेनिक एसिड ये इससे और वीक एसिड है क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जिस कारण से ये H+ देरी से रिलीज करेगा। अब बात करते हैं माइनस आई प्रभाव की। अब बात कर लेते हैं माइनस आई प्रभाव की। माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ माइनस, यदि माइनस आई प्रभाव बढ़ता है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, CH3COOH और CH2COOH और CHCOOH और CCl3COOH, एक Cl लगा हुआ है, और फिर देखिए एसिड स्ट्रेंथ इस साइड को इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो ये क्लोरीन एटम जो है, ये वाले जो क्लोरीन एटम हैं, ये माइनस आई इफेक्ट उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें कम है, इसमें तो है ही नहीं माइनस आई, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट है। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण इसके अंदर जो प्लस इफेक्ट है, लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट है। इसमें किसका डबल आई इफेक्ट हो गया है, इंक्रीज हो गया है माइनस आई इफेक्ट, लेकिन इसमें और इंक्रीज हो गया माइनस आई इफेक्ट। और मैंने बताया तो एसिडिक स्ट्रेंथ, द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और यदि मैं बात कर लेता हूं कि CH2 और मैंने यहां F लगाया है
और CH2 यहां Cl है और COH और यहां COH और CH2Br COH एंड CH2I COOH। इसमें किस एसिड की एसिड स्ट्रेंथ अधिक होगी? इसकी होगी। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि जो मैंने आपको सीरीज दी थी उसमें इस का जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करता है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे अधिक है। भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये जो हमारे पास H+ है बहुत जल्दी रिलीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन इस साइड को हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का मोशन इस साइड को हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों का मोशन और प्रबल रूप से इस साइड को हो रहा है तो बहुत जल्दी H+ दे देगा। जब बहुत जल्दी H+ दे देगा, और हम जानते हैं कि जो भी एसिड बहुत जल्दी H+ आयन दे देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो एसिड बहुत देरी से H+ आयन देते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो ये देरी से H+ आयन देगा, इसलिए इन चारों में ये वीक एसिड। अब बात कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स देखिए, मैं आपको बताऊं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। OH 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 और OH। यदि हमारे पास यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन और यहां आयोडीन लगा है, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अधिक है, जिस कारण से ये H+ दान करके H+ डोनेट कर देता है बहुत जल्दी। इसलिए यह जो एल्कोहल है हमारे पास, जो एल्कोहल है ये अधिक एसिडिक नेचर का है। ये जो एल्कोहल हमारे पास है ये अधिक एसिडिक नेचर का है क्योंकि इसके साथ इस कार्बन पर जो हमारे पास ये जो कार्बन लगा हुआ हमारे पास, इस कार्बन के साथ ये फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। अब बात कर लेते हैं एल्कोहल और फिनोल की। C2H5OH C2H5O- plus the acidic character alcohol and phenol, alcohol and phenol। देखिए इसमें केवल इसकी एक रिजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो ये स्टेबल नहीं है। लेकिन इसकी जब हम बात कर लेते हैं, इसमें कितनी इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, डबल बॉन्ड O। देखिए ये हमारे पास जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहां और ये ऐसे यहां आता है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज H और यहां नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। देखिए कितनी रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं जिसकी किसी की भी इसमें फिनोक्साइड, जो हमारे पास फिनोक्साइड आयन है, ये हमारे पास जो ये फिनोक्साइड आयन है, इसकी जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उस किसी भी आयन को, किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करता है, और जिस किसी की भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी अधिक होगी और स्टेबिलिटी अधिक होगी तो वह अधिक एसिड स्ट्रेंथ वाला होगा। इसलिए जो हमारे पास एथिल अल्कोहल है और ये फिनोल है, तो ये फिनोल अधिक एसिडिक कैरेक्टर रखता है, अधिक एसिडिक कैरेक्टर रखता है। अब बात करें इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर है तो ये अधिक स्टेबल है। ये जो हमारे पास एथोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन दोनों में फिनोक्साइड आयन अधिक स्टेबल है। किस कारण से? रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण अधिक स्थायी है, जिस कारण से फिनोल एथेनॉल से अधिक एसिडिक नेचर का होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, द बेसिसिटी ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर एक्सप्लेन बाय द
इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए हमारे पास प्लस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जैसे कि हमारे पास अगर हम बात कर लेते हैं NH3 की, बेसिक कैरेक्टर वाला है, फिर CH3 NH2 और CH3 CH2 NH2 एंड CH3 CH3 CH NH2। देखिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये लॉन पेयर और लॉन पेयर। हम जानते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान कर देता है बेसिसिटी प्रॉपर्टी का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसमें एक एटम है हमारे पास, हेटेरोएटम है, जो कि जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इसलिए यह है बेसिक नेचर का। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिक नेचर एक्सप्लेन बाय द पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट। द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज द प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट। तो इसकी बेसिक नेचर अधिक है क्योंकि इसके पास ये प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास इससे बड़ा प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाला ग्रुप है, इसलिए इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इससे अधिक है। अब सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ इसकी, क्योंकि इसके पास जो है ये हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है, तो ये भी यहां भी प्लस आई प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो ये सबसे अधिक बेसिक नेचर का आइसोप्रोपिल होगा। ये हमारे पास एलिफेटिक एमीन की जो हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये एनिलीन है, हमारे पास ये साइक्लोएनिलीन है, देखिए इसमें ये बेसिसिटी प्रॉपर्टी का तो है, बट यहां पर ये प्लस आई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसकी बेसिक नेचर अधिक है। अब मैं बात कर लेता हूं माइनस आई इफेक्ट। सो द प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ देखिए हमारे पास जो है ये CH3NH2 और CH2NH2 और CHNH2 और CHCNH2, Cl और Cl, यहां Cl2 और यहां Cl। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए इनमें स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर कौन सा रखता है? ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर रखता है बिकॉज द फर्स्ट कंपाउंड हैज द प्लस आई इफेक्ट, बट इन द सेकंड कंपाउंड दिस इज द माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। सो I know and you know the basic strength inversely proportional to the minus I effect। कहने का मतलब ये है अगर इस अल्फा कार्बन एटम के साथ में जैसे जैसे कोई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करने वाला ग्रुप जुड़ता जाता है तो उस बेस की बेसिसिटी डिक्रीज होती जाती है, उस बेस की बेसिसिटी डिक्रीज होती जाती है, उस बेस की बेसिसिटी डिक्रीज होती जाती है। अब मैं एक एग्जांपल और आपको बता देना चाहूंगा। देखिए हमारे पास ये एमीन है, NH2 और NH2। So you know that contain the lone electron of the nitrogen atom। This is an alpha carbon atom। Cl, Br, I, इनमें कौन सा बेसिक कैरेक्टर अधिक रखता है? इनमें बेसिक कैरेक्टर इसका सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक नेगेटिव इंडक्टिव उत्पन्न करता है।
जब ये अधिक नेगेटिव इंडक्टिव उत्पन्न करता है तो इस इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को ये इस साइड ऐसे अपनी ओर एक्सेप्ट बहुत जल्दी करेगा, तो ये डोनेट करने लायक नहीं रहेगा। जब ये फ्लोरीन एटम इस इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये नाइट्रोजन किसी और दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लायक जब नहीं रहता है तो इसकी बेसिक नेचर कम हो जाती है। इसकी पावर इससे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को कम अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को डोनेट कर सकता है, लेकिन इसकी जो बेसिसिटी प्रॉपर्टी वो इससे अधिक है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा।